Hello everyone. Today we are going to discuss about the very important topic which is the general overview on environment. In this particular presentation we will discuss about the past, present and future of our environment. So in this slide we can see that this is the environment which is surrounding to us. We can say this is our beautiful Mother Earth. In this beautiful Mother Earth, we can see the biodiversity of the plants, animals, microorganisms. In this Mother Earth, we can also see different type of biotic and abiotic factors. So this beautiful slide show us about our environment. Now this is the biodiversity. All of you know that on our environment, or you can say in our environment, the diversified types of plants, animals and microbes are present. So in this particular slide, you can see different type of plants, different type of, you can say the molds, fungus, different type of flowers, different type of fishes and different type of trees present in the environment. So by seeing this, we can tell that how beautiful our earth is. हमारी अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन क्या वो सच में है? It was really true? Whether it was really beautiful? So currently we will say that no. Today our earth is not beautiful at all. Today our earth is dirty. Why our earth is dirty? Because different type of pollutions are created by the human being. So the first type of pollution which we can see is the environmental pollution. This environmental pollution, it can be defined as the undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of the component of environment. हमारा जो environment होता है, हमारे environment में अलग अलग components है, जैसे air, water, soil, different type of trees you can say. तो ये जो हमारे एनवायरनमेंट में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन. और ये जो पोल्यूशन है, दिस पोल्यूशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सब्सटेंस कॉजिंग न्यूसेंस, हार्मफुल इफेक्ट एंड अनइजीनेस टू द ऑर्गेनिज्म. जो फैक्टर्स की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में न्यूसेंस क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट होते हैं, उनको हम कहते हैं पोल्यूशन. एंड द पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स. सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द बिग इशू globally. Now in this particular slide you can see that a beautiful water reservoir was present, but this beautiful water reservoir is now get polluted due to the sewage outlet. Here you can see that sewage outlet is present. Then this is the man is putting, or you can say pouring, the garbage in this water reservoir, and due to all these pollutants, the aquatic animals, they are becoming very nuisance and they are getting very much disturbed, and some of the aquatic animals get killed also, die also, and these aquatic animals are running towards the land. Okay, so this slide depicts how pollution is created. Now major type of pollutions are the air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. Now this particular photo, it shows you the air pollution. Here you can see that lot of smoke is liberated outside from the chimneys which are present in the large industries. So basically air pollution, it is the introduction of particulates, biological molecules or harmful material into the earth atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब पार्टिकुलेट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, हार्मफुल मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. और ये जो एयर पोल्यूशन होता है, इसके वजह से क्या होता है? इट कॉजेज डिसीजेस, डेथ टू ह्यूमंस, डैमेज टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज फूड क्रॉप्स और द नेचुरल और बिल्ट एनवायरनमेंट. अब मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? यहाँ आप देख सकते हो कि दिस इज द मदर अर्थ. दिस मदर अर्थ इज getting very panic
due to this air pollution. These are all the pollutants which are causing the air pollution, and that's why our mother earth is shouting, our mother earth is getting panic. So major air pollutants are the carbon dioxide, sulfur oxides, nitrogen oxides, carbon monoxides, particulate matter. Here in this cartoon you can see that this is the man, that due to the air pollution, due to the harmful gases present all over the environment, this man is carrying the oxygen cylinder, but in this oxygen cylinder a tree is present. So in the future, in the near future, we can see such type of persons also, that each and every person is carrying one plant with him in the form of oxygen cylinder. So this is the future of our environment if we will not control the pollution. Now sources of air pollution. तो एयर पोल्यूशन काय की वजह से होता है, तो एमिशंस फ्रॉम पावर स्टेशंस, जो पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ से जो एमिशन होता है उससे होता है एयर पोल्यूशन. एमिशंस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से होता है. व्हीकल्स का जो एमिशन है, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, हमारे एनवायरनमेंट में हम बहुत कुछ जलाते हैं सॉलिड वेस्ट, उसका एमिशन जो होता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फॉरेस्ट फायर की वजह से एयर पोल्यूशन होता है. Now, how we will control the air pollution? So basically, we should maintain the standards for air. The WHO has given the standards for air. We should maintain that standards. Different type of laboratory equipments are there which can use for monitoring the air station, or you can say which can monitor the air pollution. Portable gas analyzers are there, which is also one of the laboratory equipment. By using this gas analyzer, we can analyze the quality of air. Then smoke control action plan. The action plan is there which is related with the smoke control, how we can control the smoke. The second type of pollution is the water pollution. Here you can see that how the water is getting polluted. This is a particular type of industry, and from this industry the wastewater is directly discharged in this water, and that's why this water is getting polluted. So water pollution क्या होता है? तो water pollution means कंटैमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडी का जो कंटैमिनेशन होता है, अब ये वाटर बॉडी लेक हो सकती है, रिवर, ओशियन, ग्राउंड वाटर, एक्विफायर्स, कुछ भी हो सकती है. तो इनका जब कंटैमिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन. हियर यू कैन सी कि दिस इज द रिवर, एंड इन दिस रिवर द पीपल आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, पीपल आर bathing, and they are causing the pollution. So major water pollutants, these pollutants can involve the organic contaminants like detergents, herbicides, inorganic contaminants like heavy metals, ammonia. Solid waste is also there, plastic, paper, food waste. Thermal pollution is also there, like discharge of warm water into the water bodies by the factories. The factories, they directly discharge the warm water into the water bodies, and that's why thermal pollution is also there. So these are the major water pollutants which are causing the pollution of the water. And other sources of water pollution are the sewage. Sewage, if the sewage is directly discharged into the water bodies, then it will cause the water pollution. Runoff of pesticides and fertilizers. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल अगर प्रॉपर नहीं है तो वो जाके वाटर में मिलेगा और उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होगा. अनट्रीटेड इफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अदर एक्टिविटीज. इंडस्ट्रियल और अदर एक्टिविटीज से अगर अनट्रीटेड इफ्लुएंट्स आ रहा है तो वो अनट्रीटेड इफ्लुएंट की वजह से भी वाटर पोल्यूशन होगा. केमिकल एंड ऑयल स्पिल्स आर ऑल्सो द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. Now here you can see the third type of pollution, land pollution. Here you can see this is the land, but we can't see the land. Instead of land, we can see number of the unused or waste material present on the land, and that's why this land is get polluted. सो लैंड पोल्यूशन जो होता है, इसमें जब हम सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मटेरियल लैंड में डायरेक्टली डिस्पोज करते हैं तो उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है. और ये लैंड पोल्यूशन जो है उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो होता है वो सॉइल और ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है, एंड इट कॉज द थ्रेटन पब्लिक हेल्थ. उससे हमारी पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी कॉज फर्क पड़ता है, अफेक्ट होता है, एंड इट कॉज द न्यूसेंस इन द एनवायरमेंट. अब लैंड पोल्यूशन किस किस की वजह से होता है? तो लैंड पोल्यूशन में सबसे मेन है डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट. हमारे घर में कुछ जो सॉलिड वेस्ट होता है हम डायरेक्टली अगर लैंड में डिस्पोज कर रहे हैं, लाइक गार्बेज, रबिश, ट्रैश, तो उसकी वजह से होगा लैंड पोल्यूशन. कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट.
बहुत सी जगह जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है या कोई घरों का डिमोलिशन होता है तो उससे जो वेस्ट निकलता है दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन. एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, दिस आर ऑल द सोर्सेस ऑफ लैंड पोल्यूशन. Then next type of pollution is the noise pollution. Here we can see that noise, किसको कहेंगे हम noise? तो noise को define अगर आपको करना है तो noise means it is the unwanted sound. जो भी unwanted sound होता है environment में उसको हम कहेंगे noise. और ये जो noise होता है it affects the man physically, psychologically and socially. उससे हम फिजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं और सोशली भी डिस्टर्ब होते हैं. एंड इट मे बी कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट एंड मे बी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी. नॉइज जो है कंटिन्यूअस भी हो सकती है, इंटरप्टेड भी हो सकती है, हाई फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है, लो फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है. यहाँ आप देख सकते हो कि दिस इज द मीटर विच इज शोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज. नाउ हियर यू कैन सी दैट दिस इज द girl and she is suffering from the noise pollution. She has hold the pillow all over the ear from protecting against this noise pollution. तो हम noise pollution के sources क्या है? हमको पता है कि noise pollution के sources जो है हमारे environment में ये basically industrial, अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं तो वहाँ पे हमको नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मिलता है. मल्टीपर्पस हॉल, अगर वेडिंग हो रही है, वेडिंग हॉल से हमारे घर के आसपास तो आप लोगों को नॉइज पोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है. बंगलोज अलोंग द कोस्ट, कुछ बंगलोज कोस्ट के आसपास बनाए जाते हैं तो वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन होता है. प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक नाइट क्लब, रोड ट्रैफिक इज देयर, कम्युनिटी नॉइस इज देयर, लाउड स्पीकर्स आर देयर, नेबरहुड इज देयर, machineries are there and number of sources are responsible for the noise pollution. Now what are the effects of noise pollution? So basic effect or major effect of noise pollution is the hearing loss. बहुत से लोग देखो आप hearing loss हो जाती है उनकी, कुछ उम्र के बाद में उनको सुनाई देना कम हो जाता है. And this hearing loss is mainly observed in the occupational hearing loss. कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन ही ऐसा होता है कि जहाँ उनको कंटिन्यूअस नॉइज के कांटेक्ट में रहना पड़ता है तो वो लोग बहुत जल्दी हेयरिंग लॉस कर लेते हैं, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है. और मैक्सिमम लोगों में धीरे धीरे करके हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन. देन ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन स्ट्रेस, हमको स्ट्रेस बढ़ता है. आप देखो अगर आप बहुत शोर वाली जगह में जाते हो तो कुछ समय के बाद आपको स्ट्रेस अपने आप महसूस होने लगता है. हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है नॉइज पोल्यूशन से. स्लीप लॉस होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होती है. हम जितना काम अच्छे से कर सकते हैं शांति में, अगर आप नॉइज पोल्यूशन में जाते हो तो आपको वो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी लॉस होगी. इरिटेबिलिटी, हम इरिटेबल हो जाएंगे. हेडेक होगा. annoying and interfere with the communications, हमारा कम्युनिकेशन हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. अब नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए गए हैं, अलग अलग यू कैन से कंट्रोल मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स है. तो उसमें सबसे पहले मास सेंसिटाइजेशन, हम लोगों को मास सेंसिटाइजेशन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करो. एनफोर्समेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉइज, जो एग्जिस्टिंग नॉइज है उसको हमको एनफोर्स करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए. यूज ऑफ नॉइज एबेटमेंट टेक्नोलॉजीज, नॉइज को एबेट करने की, नॉइज को स्टॉप करने की, नॉइज को रिड्यूस करने की टेक्नोलॉजीज यूज करनी चाहिए. एंड रिसर्च इन द नोवेल टेक्नोलॉजीज. अब नॉइज एबेटमेंट टेक्नोलॉजीज हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो ये अर्थ है, अर्थ को हमने इस तरीके से ईयरफोन लगा दिए जो सो दैट यहाँ पे हम लोगों को अनवांटेड नॉइज नहीं आएगा. तो ये जो फिगर है ये आपको डिपिक्ट कर रही है इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर्स बिटवीन द नॉइज सोर्स एंड द रिसीवर. जो नॉइज सोर्स है, नॉइज सोर्स और रिसीवर, इनके बीच में अगर हमने कुछ बैरियर यूज किया है ना, हम लोग अगर बहुत नॉइज वाली जगह पे जाते हैं तो हम हमारे कान बंद कर लेते हैं किसी ना किसी चीज से, बैरियर, कि वो साउंड जो है वो हमारे कान में ना आए. यूज ऑफ एकॉस्टिक्स इन द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग सच एज डबल ग्लेजिंग. जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उस समय हम लोग इस तरीके के एकॉस्टिक्स यूज कर सकते हैं, डबल ग्लेजिंग यूज कर सकते हैं कि बाहर की नॉइज हमारे घर तक जल्दी ना आए. इंस्टॉलेशन ऑफ पैनल्स और एनक्लोजर्स, कहीं कहीं हम नॉइज पैनल्स भी लगाते हैं जिससे हमको समझ में आता है कि नॉइज पोल्यूशन कितना है. ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, अगर हमारे आसपास ग्रीन बेल्ट है, अगर हमारे आसपास बहुत सारी ट्रीज और श्रब्स है तो ऑटोमेटिकली साउंड का लेवल कम हो जाएगा.
अब ये जितने हमने पोल्यूशन पढ़े, ये सारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर वॉच रखने के लिए कुछ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है जनरली नॉइज, सैनिटरी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड ओडर न्यूसेंस, इसके ऊपर वॉच रखती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो इंडस्ट्री है जो पेस्टिसाइड्स, रेसिड्यू, सॉइल एंड कंपोस्ट के ऊपर ध्यान देती है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज इज देयर जो वाटर से कंसर्न रखती है। पोर्ट मास्टर इज देयर, वाटर्स इन द पोर्ट, वाटर पोर्ट में जो वाटर होता है उसके ऊपर ये ध्यान देते हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज देयर जो कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस या वेस्ट वाटर इफ्लुएंट का मॉनिटरिंग करती है। वाटर रिसोर्स यूनिट्स आर देयर जो कि इनलैंड वाटर्स के ऊपर वॉच रखती है। मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर फॉर द सॉलिड वेस्ट एंड हजार्डस वेस्ट। लोकल अथॉरिटीज, बहुत सी लोकल अथॉरिटीज होती है जो अलग अलग टाइप से पोल्यूशन को वॉच रखती है, मॉनिटर करती है। उसके अलावा एनफोर्समेंट मेथड्स भी है, लाइक प्रोग्राम नोटिस, एनफोर्समेंट नोटिस, प्रोहिबिशन नोटिस, स्टॉप ऑर्डर, ISO और अबैटमेंट नोटिस एंड फिक्स पेनल्टी। तो इसमें से जो फिक्स पेनल्टी है ये हमारे बहुत ज्यादा यूज का है कि कोर्ट लेवल पे अगर हम देखते हैं तो पोल्यूशन करने वाले इंसान के लिए फाइन रखा गया है। दिस फाइन इज ranging from the 50,000 up to 100,000 and imprisonment is also there for the 4 years. And secondly, अगर conviction जो है वो बहुत ज्यादा है, अगर pollution करने वाला जो भी कुछ source है तो उसको 100,000 से लेके 500,000 तक का भी फाइन दिया जाता है और उसका इम्प्रिजनमेंट जो होता है 6 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक होता है। सो पेनल्टी इज ऑल्सो फिक्स फॉर द पोल्यूशन। Now in the slide you can see that here are the childrens, they are saying that we need everyone's help to stop pollution. They are discussing कि हम लोगों को सबकी हेल्प लेना चाहिए पोल्यूशन को स्टॉप करने से। क्यों? क्योंकि इसका कहना है इट्स योर वर्ल्ड, हेल्प कीप इट क्लीन। ये हमारा वर्ल्ड है, इसको हमको ही क्लीन रखना है, तो सभी को एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए। अब कुछ हम आप यहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड सीन्स देखेंगे, उनका कुछ डायलॉगिंग्स देखेंगे जो आपको बहुत मजेदार लगेगा, लेकिन वो आपको एक रियल फैक्ट बता रहा है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, अ कॉमन बिलीव, नो वन इज नोटिसिंग, लेट्स डिस्चार्ज इट, बिंदास। बहुत से लोग बहुत बिंदास होते हैं, है ना। नो वन इज नोटिसिंग, वो देखते रहे कौन देख रहा है, चलो चलो जो भी कुछ पोल्यूशन करना है करो। तो ये जो बिंदास जो लोग होते हैं वो लोग इस तरीके का पोल्यूशन करते हैं। डायरेक्टली वाटर रिजर्वायर में दे आर डिस्चार्जिंग द पोल्यूटेंट्स एंड इट्स शेम थिंग, बैड मेंटेलिटी, डर्टी मेंटेलिटी। ये जो मेंटेलिटी होती है जो कहते हैं कि नो वन इज नोटिसिंग, लेट्स डिस्चार्ज इट, ये मेंटेलिटी जो है दिस इज वेरी शेमफुल थिंग, बैड मेंटेलिटी इज देयर। यहाँ आप देख सकते हो, यू ओनली कैन डू, प्लीज डू समथिंग, राम तेरी गंगा मैली। जहां हम कहते थे कि गंगा में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, आज उस गंगा की हालत क्या है, तो गंगा जो है वो मैली हो चुकी है, वो पोल्यूशन से भर चुकी है, ये हालत है गंगा की। लेकिन अभी उसके ऊपर बहुत गंगा को क्लीन करने का अभियान चल रहा है, तो होप इन द नियर फ्यूचर गंगा वापस से क्लीन हो जाएगी। यहाँ देखिए, ये यमुना का किनारा है जहाँ कभी कृष्ण जी रहा करते थे। तो ये यमुना का किनारा आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है इस यमुना के किनारे पे, हाउ पोल्यूशन इज देयर। सो यू ओनली कैन डू, प्लीज डू समथिंग। हाय रे यमुना, क्या हाल बना दिया है, कुछ लेते क्यों नहीं, ये यमुना का हाल है। कुछ लेते क्यों नहीं, इस यमुना को क्लीन करते क्यों नहीं, डू समथिंग। Here you can see this is the photo of the Relax Corporate of 2011. Relax Corporate है जो यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है, स्मोक रिलीज कर रहा है। यहाँ से इसकी इंडस्ट्री में का इफ्लुएंट जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स के ऊपर जा रहा है, वाटर रिजर्वायर में जा रहा है, उसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल मर रहे हैं। लेकिन टेंशन काहे को लेने का, नो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, बिकॉज इज द रिलैक्स कॉर्पोरेट। सो दिस इज अगेन द शेम थिंग, बैड मेंटेलिटी एंड डर्टी मेंटेलिटी। और फ्यूचर 2020, अभी तो हम 2021 में चल रहे हैं, लेकिन ये उसी समय बताया गया था कि फ्यूचर 2020 मतलब 2020 के आगे क्या होगा। तो जो आप देख रहे हो, ₹10 पर 1 किलोलीटर ऑफ द वाटर, आपको नल के ऊपर इस तरीके से मीटर लगे हुए मिलेंगे और 1 लीटर पानी की कीमत होगी ₹10।
अब तो जागो मेरे लाल, अगर ये आप लोगों को पे नहीं करना है तो अभी भी आप लोगों को वाटर को बचाना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। आपको नहीं, हम सभी को, एक्चुअली हम सभी को वाटर को प्रिजर्व करना चाहिए। अदरवाइज नियर फ्यूचर में यही हाल होगे कि हर 1 लीटर वाटर की कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। अब एग्रीकल्चर पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखता है। एक्चुअली एग्रीकल्चरल पोल्यूशन जो है इट इज टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल टेररिज्म, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चरल टेररिज्म है इसकी वजह से हम लोगों को बहुत हेल्थ इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, क्यों पैसा पैसा करती है, इसको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए ये क्या कर रहा है, अनवांटेड अनकंट्रोल यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द फार्म। उसके फार्म में अनकंट्रोल केमिकल फर्टिलाइजर वो डाल रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे खेती में अगर बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी होगी तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये पैसे के चक्कर में क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज कर रहा है उसके खेत में। और ये जो फूड है, ये फूड हम खा रहे हैं। ये फूड खाने से आप देख सकते हो कि ये जो चाइल्ड है इट इज सस्पेक्टेड टू द विक्टिम ऑफ एंडोसल्फन इन केरला। केरला में का ये फोटो है। ये बच्चा जो है एंडोसल्फन की वजह से वो उसकी आगे जाके डेथ हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो ओल्ड लेडी है शी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिसीज। और ये अनाज हम खा रहे हैं, ये फूड हम खा रहे हैं एंड वी डोंट नो कि इस फूड में कितना ज्यादा पेस्टिसाइड है, वी डोंट नो। तो इस तरीके से पैसे पैसे के चक्कर में आज हम लोग इस तरीके के हेल्थ इश्यूज में आ गए हैं। सो दिस इज एग्रीकल्चर टेररिज्म। नाउ एक्टिविस्ट, हम देखते हैं ना एक्टिविस्ट लोग होते हैं। तो एक्टिविस्ट जो होते हैं, एक्टिविस्ट इज नॉट द मैन हु से एनवायरनमेंट इज डर्टी। एक्टिविस्ट कभी आपको ये नहीं कहेगा कि एनवायरनमेंट डर्टी है, वो आपको ये कहेगा कि एक्टिविस्ट इज द मैन हु क्लीन अप द एनवायरनमेंट। जो इंसान एनवायरनमेंट को क्लीन करता है उसको आप कहोगे कि वो एक्टिविस्ट है। क्लियर? एक्टिविस्ट कभी ये नहीं कहेगा कि एनवायरनमेंट क्लीन है, एनवायरनमेंट डर्टी है, सॉरी एनवायरनमेंट डर्टी है। एक्टिविस्ट आपको एनवायरनमेंट क्लीन करके देगा। अब ये कुछ एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हो कि कंटेमिनेंट पेस्टिसाइड्स, फूड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से कंटेमिनेंट पेस्टिसाइड पाए गए। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ 2016 एट अकोला, नागपुर, अमरावती, वाशिम एंड बुल्ढाना। एप्पल में आप देखो कैप्टन, एंडोसल्फन, डाइफिनिलमाइन, ये सब चीजें हैं, फॉस्फेट है। बनाना, डायजियन, ट्राइबेंडाजोन, कार्बेरिल, ये सब चीजें पाई गई है। कैबेज में भी आप देख सकते हो BHC है। कैरेट्स में DDT दिख रहा है। कॉलीफ्लावर में एंडोसल्फन दिख रहा है। चेरीज जो हम खाते हैं उसमें पैराथियन है। कॉर्न में सल्फेट्स हैं। क्यूकुम्बर, इसमें भी एंडोसल्फन है। डायल्ड्रिन है। ग्रेप्स में डाइक्लोरन है। ग्रीन बीज, डाइमिथोएट, एंडोसल्फन है। लेट्यूस जो होते हैं उसमें भी एंडोसल्फन है। तो इस तरीके से दिस इज द फिगर विच इज ऑफ 2016। तो इस तरीके के केमिकल पेस्टिसाइड्स हमको फूड में बहुत ज्यादा मिले हैं। अब ये केमिकल इनपुट्स जो हम ये केमिकल इनपुट्स दे रहे हैं खेत में, उसका हॉरोस्कोप क्या है, उसकी कुंडली क्या है। तो हमने केमिकल इनपुट्स की एक कुंडली बनाई है। ये जो कुंडली है, इस कुंडली में हमको दिखाई दे रहा है कि हाई कॉस्ट, ये जो केमिकल इनपुट्स है उसमें हम हाई कॉस्ट पे कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि हाई कॉस्ट होता है। हम ये सोचते हैं कि इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। एक्सपायरी, उसकी कुछ एक्सपायरी होती है। नॉट इको फ्रेंडली नहीं है। इंक्रीज एग्रो प्रोडक्टिविटी मिलती है हमको, लेकिन टॉक्सिक है ये। शॉर्ट सप्लाई होता है इनका, शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। नॉट इजीली अवेलेबल, डिफिकल्ट टू यूज। इनकी वजह से इंप्रूवमेंट इन सॉइल टेक्सचर होता है, प्लांट प्रोटेक्शन होता है, लेकिन ये जो रेड कलर से हाईलाइट किए हैं ये सब उसके हार्मफुल इफेक्ट्स है। अब इसी के बदले हम देखते हैं हॉरोस्कोप ऑफ बायोलॉजिकल इनपुट। अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं या बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज करते हैं खेत में, तो उसमें हमको एक भी रेड मार्क नहीं मिल रहा। लो कॉस्ट है, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, नो एक्सपायरी, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, इको फ्रेंडली है, इंक्रीज एग्रो प्रोडक्टिविटी, नॉन टॉक्सिक, नो शॉर्ट सप्लाई, इजीली अवेलेबल, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, इजी टू यूज है, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, प्लांट प्रोटेक्शन। सो दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ बायोलॉजिकल इनपुट। सो यू डिसाइड ऑन दिस हॉरोस्कोप कि आपको केमिकल इनपुट देना है खेत में या बायोलॉजिकल इनपुट देना है, क्योंकि आपको पूरे जो एडवांटेज
मिलते हैं केमिकल इनपुट में, वो एडवांटेज आपको बायोलॉजिकल इनपुट में मिल रहे हैं, लेकिन केमिकल इनपुट में आपको बहुत से ड्रॉबैक्स भी मिल रहे हैं जो यहाँ नहीं मिल रहे. क्लियर? सो दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ बायोलॉजिकल इनपुट. सो फ्रॉम दिस हॉरोस्कोप यू कैन डिसाइड कि व्हाट वी शुड यूज इन द एग्रीकल्चर. नाउ दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आप देख रहे हो. इसमें एक किसान कह रहा है मुझे माफ करना, ओम साई राम. ये एक किसान है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हम कहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, उल्टा फार्मर्स जो है वो मर रहे हैं. क्लियर? सो दिस इज द, यू कैन से दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द एग्रीकल्चर. नाउ here we will think for just a second, when was the last time you hugged the earth? हमने अर्थ को कब अपनी मदर अर्थ की तरह हग किया, कब हमने बहुत प्यार से अपनी अर्थ की तरफ देखा. सो आई थिंक कि आज तक किसी ने भी इस चीज पे गौर नहीं किया कि हम अर्थ को मदर अर्थ की तरह कब हमने उसको हग किया होगा. अब ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं? तो पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वेस्ट मैनेजमेंट. इस तरीके से ये सभी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज है. पोल्यूशन ऑलरेडी हमने देखा अभी कि कितने टाइप के पोल्यूशन से, क्या क्या हुआ पोल्यूशन की वजह से. हाउ अवर अर्थ इज शाउटिंग अगेंस्ट दिस पोल्यूशन एंड वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग द पोल्यूशन. अब ये पोल्यूशन के हेल्थ इफेक्ट भी हम देखते हैं. एयर पोल्यूशन में जो गैसेस रिलीज हो रही है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेडेक, फटीग, रेस्पिरेटरी इलनेस, कार्डियोवास्कुलर इलनेस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कैंसर, नोशिया एक्सेट्रा. डिफॉरेस्टेशन, यहाँ डिफॉरेस्टेशन है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो जंगल थे, जंगल को साफ कर दिया, बहुत सारे झाड़ों को काट दिया. कहीं कहीं नेचुरल फॉरेस्ट फायर की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया. तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन जो है, दिस इज ऑल्सो द ग्लोबल इशू. क्लाइमेट चेंज हो गया. यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ कुछ हमारे अर्थ पे कुछ ऐसा पोर्शन है जहाँ एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है, और कहीं ऐसा है कि इतनी बारिश हो रही है या ऐसा कुछ मौसम हो चुका है कि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा वेट कंडीशन है. तो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज इज देयर. कहीं पे आप देख सकते हो आइसबर्ग जो है वो पिघल रहे हैं और उसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ रहा है. यहाँ हमारी अर्थ जो है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है. इसमें दिख रहा है आप लोगों को कि अर्थ जो है वो इस तरीके से जलना शुरू हो चुकी है. ओजोन डिप्लीशन, आपको मालूम है कि ओजोन जो है, ओजोन होल 1947 में जो था वो बढ़ के इतना हो चुका है ओजोन होल. This is about 220 Dapson units. So this is a very much, you can say, alarming threat for us. Endangered species extinction, बहुत सी species जो है वो endangered है, मतलब वो खत्म होने के कगार पे है. आज हमको दिख रही है, कल हमको वो species नहीं दिखेंगी. और बहुत सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीशीज है जो आप लोगों को अब नहीं दिखेगी, अर्थ पे से जा चुकी है. और आज हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज में एलिफेंट इज देयर, वाइट पोलर बियर इज देयर, टाइगर इज देयर. ये सब जो है बहुत सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है और बहुत सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है. सो हेल्प अस, ये एनिमल सब आपको कह रहे हैं हेल्प अस, हमको हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करो. नेचुरल रिसोर्स एग्जॉशन, बहुत सा नेचुरल रिसोर्स हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है. तो कहीं हमको जब बहुत ज़्यादा हेल्दी एटमॉस्फेयर दिखता था 1909 में, 2005 में कुछ हद तक वो ठीक था, लेकिन अब तो वो बहुत ही बुरे हाल है उसके एनवायरनमेंट के. सो नेचुरल रिसोर्स एग्जॉशन इज देयर. पॉपुलेशन का भी पोल्यूशन है. आप यहाँ देख सकते हो हाउ पॉपुलेशन इज देयर, हाउ मच पॉपुलेशन इज देयर. यहाँ हमारे अर्थ जो है, अर्थ पे से ये पॉपुलेशन पोल्यूशन कर रही है. क्लियर? अब इस फिगर में देखिए, वेदर आई विल से यू कि वेस्ट इज अर्थ और अर्थ इज वेस्ट. कभी कभी हम यहाँ देख के, ये ऐसे जो पिक्चर्स होते हैं वो देख के ऐसा लगता है कि वेस्ट इज अर्थ, क्या वेस्ट ही अर्थ है या अर्थ इज वेस्ट, अर्थ वेस्ट है. नाउ ये जितनी चीजें हमने डिस्कस की, कैन वी अगेन मेक अर्थ बेटर प्लेस टू लिव? हम वापस से अर्थ को अच्छा बना सकते हैं क्या? तो यस, डेफिनेटली. कैसे?
तो सबसे पहले हमको प्लेज लेना पड़ेगा टू सेव अवर एनवायरनमेंट। हम सब ने प्लेज लेना चाहिए, हम सब ने अपने आप में वादा करना चाहिए कि हमको एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, सेव करना है और जय हिंद का नारा लगाना है, जिससे कि हमारी प्लेज जो है वो हम फुलफिल कर सके। व्हाट कैन वी डू, और हम क्या कर सकते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट तो करना है, नो प्रॉब्लम, वी शुड डू डेवलपमेंट, लेकिन ये डेवलपमेंट हमने कैसी करनी चाहिए? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब ये लाइफ लॉन्ग, हमारी आगे वाली जो जनरेशन है उन तक ये सब नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये पहुंचने चाहिए। तो रिसोर्स यूज हमको सोच समझ के करना चाहिए। ह्यूमन नीड्स जो है, ह्यूमन नीड्स को हमको कुछ हद तक कंट्रोल करना चाहिए। प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना चाहिए, और इसके लिए हम ELF कर सकते हैं, एनवायरनमेंट, लोकल पीपल एंड फ्यूचर। नाउ जस्ट डू इट। क्या करना चाहिए हमने? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस करो। रिसाइकल आइटम्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, रिसाइकल को ज्यादा वेटेज दो। रीयूज द प्रोडक्ट, अगर हम उस प्रोडक्ट को रीयूज कर सकते तो रीयूज करो। तो जस्ट डू इट, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। सो 3 डिफरेंट R's आर देयर, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। जितना कुछ हम रिड्यूस कर सकते हैं पोल्यूशन रिड्यूस कीजिए, जितना कुछ रिसाइकल कर सकते हैं उसको रिसाइकल कीजिए, और जितना रीयूज कर सकते हैं उसको रीयूज कीजिए। गो ग्रीन, हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करना चाहिए, जैसे कि हम CFL यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रिजर्वेशन के लिए, वाटर एफिशिएंसी के लिए भी हमने कुछ गो ग्रीन करना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्सेस के ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए, लाइक बायोडीजल, like the wind energy, like the solar energy, like we can use the gobar gas also. Then we should do the composting. So just recycle the waste, जो waste निकल रहा है उसको recycle करो। Naturally this recycling, after recycling this waste is converted into the compost, और ये compost को आप अपने plants के लिए use करो for the better yield। अब विजन ग्रीन अर्थ, हमारे अर्थ के लिए हमारा विजन क्या होना चाहिए? विजन ग्रीन, ग्रीन अर्थ हमारी होना चाहिए। तो ग्रीन अर्थ के लिए हम लोगों को क्लीन अप पोल्यूशन करना पड़ेगा, सो दैट द फ्यूचर गोल शुड बी द जीरो पोल्यूशन। नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल्स जो होते हैं उसको हमको डायरेक्ट कंबशन और आफ्टर कंबशन सेकेंडरी फ्यूल में कन्वर्ट करना चाहिए। रिड्यूसिंग सोसाइटल कंजम्पशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स जो है उसको कंजम्पशन रिड्यूस करना चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हमने डेवलप करना चाहिए। देन प्रोटेक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। थ्रेटन एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रिजर्व करना चाहिए। सो इस तरीके से हमारा विजन जो होना चाहिए वो ग्रीन अर्थ के लिए डेवलप होना चाहिए। एंड लास्ट वर्ड बट नॉट द लीस्ट इज लव फूड, हेट वेस्ट। फूड कभी भी वेस्ट मत कीजिए, फूड को लव कीजिए, एंड हेट वेस्ट, जितना वेस्ट को आप हेट कर सकते हो उसको हेट कीजिए। सेव ट्रीज, इट विल सेव यू। अगर आप ट्री को सेव करोगे तो ट्री आपको सेव करेंगे। नाउ हियर यू कैन सी कि by the use of biofertilizer and biopesticide, this lady is having the broad smile on her face, because biofertilizers and biopesticides are the hope for the future. If we are using the biofertilizer and biopesticide, definitely the agro productivity will be increased and we will prevent from the chemicals. So send this message to our nation, and thank you very much.